महाप्रभु वृंदावन है। वृंदावन के जो 12 वन हैं, ये सभी 12 वन नवद्वीप के 9 द्वीपों में विराजमान है। तो भक्तिविनोद ठाकुर भजन गा रहे हैं कि हमें कब हमें नवद्वीप धाम या गोद्रुम द्वीप में गुरु के कृपा से भक्ति करने की सौभाग्य प्राप्त हो। 8 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार हमें भगवान के धाम में वास करके तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, हमें भगवान की भजन करना चाहिए। अगर हमें भजन में या भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना है, भक्ति में सफलता प्राप्त करना है, तो हमें भगवान के धाम में या भगवान के भक्तों के संग में हमें वास करना चाहिए। तो उसके ऊपर ही ये भजन है। मेरे ख्याल से सबको, जो लोग मोबाइल है, आप देख सकते हैं, और नहीं तो सुन के मेरे पीछे पीछे गाइएगा। गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौरवन माझे गोद्रुमे दियाछ स्थान। गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौरवन माझे गोद्रुमे दियाछ स्थान। गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौरवन माझे गोद्रुमे दियाछ स्थान। गुरुदेव गोद्रुमे दियाछ स्थान। आज्ञा दिला मोरे ब्रजे बसी हरि नाम करगान। आज्ञा दिला मोरे ब्रजे बसी हरि नाम करगान। आज्ञा दिला मोरे, सब लोग गाइए। किंतु कदे प्रभु जगतार जीवे दासेरे दया करी। किंतु प्रभु जगतार जीवे किंतु कहे प्रभु जगतार जीवे दासेरे दया करी। जगतार जीवे दासेरे दया करी। चित्त स्थिर हबे सकल सहिब, चित्त स्थिर हबे चित्त स्थिर हबे सकल सहिब, सकल सहिब एकान्ते भजिब हरि। एकान्ते भजिब गुरुदेव बड़ कृपा करी गौरवन माझे गोद्रुमे दियाछ स्थान। गुरुदेव बड़ कृपा करी संसार যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে संसार যৌবনে
হইল কর্মদশে ভজনের প্রতিবন্ধ ভজনের প্রতিবন্ধ ভজনের গুরুদেব পর কৃপা করি গৌরবন মাঝে বদ্রুমে দিয়াছ স্থান গুরুদেব বার্ধক্যে পঞ্চরোগে হত কেমনে ভজিব বল বার্ধক্যে বার্ধক্যে পঞ্চরোগে হত কেমনে ভজিব বল বার্ধক্যে পঞ্চরোগে হত কেমনে ভজিব কাদিয়া কাদিয়া তোমার চরণ কাদিয়া 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 তোমার চরণ করিয়াছি সুবিমল করিয়াছি করিয়াছি সুবিমল করিয়াছি বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত বার্ধক্যে মনে ভজিব বল মনে ভজিব কাদিয়া কাদিয়া তোমার চরণ কাদিয়া করিয়াছি সুবিমল গুরুদেব পর কৃপা করি গৌরবন মাঝে বদ্রুমে দিয়াছ স্থান গুরুদেব পর কৃপা করি গৌরবন মাঝে আজ্ঞা দিলাম রে ব্রজে বসি হরিনাম করগান আজ্ঞা দিলাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Samvita Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamaiham Dadati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Swadvaitam Savadhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaudatishe Namah He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Nilachara Nivasaya Nittaya Paramatmane Balabhadra Subhadra Vyam Jagannathaya Te Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Antarati Vasalam Pangam Langhayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhvam Shri Chaitanya Ishwaram। तो हम सबको धन्यवाद जो लोग ऑफलाइन आए हैं। সবাই হিন্দি বোঝেন? হিন্দি বুঝতে পারবেন? চেষ্টা করুন মাঝে মাঝে বাংলা বলার। আশা করি সবাই হিন্দি বোঝেন। অনলাইনে অনেক ডিভোটি আছে যারা হিন্দি ভাষী आगे থেকে क्लास করছেন। तो आप लोग थोड़ा अटेंडेंस दे दीजिएगा ऑनलाइन डिवोटीज
অফলাইন ডিভোটিস जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लास করেছেন আপনার नाम ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है या चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन है जो इस्कॉन के द्वारा पूरे विश्व में फैला हुआ है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि रूप गोस्वामी पाद के दिव्य तत्वावधान में चल रहा है। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया था कैसे शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। दशाश्वमेध घाट में, वृंदावन में, और श्रील रूप गोस्वामी उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखा है। उसमें से दो किताब, एक है भक्ति रसामृत सिंधु, दूसरा है उपदेशामृत। कैसे भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं। भक्ति रस अमृत से भी ज्यादा मीठा है। उसको कैसे आस्वादन कर सकते हैं। उसके ऊपर भक्ति रसामृत सिंधु और उसका सूत्र के रूप में उपदेशामृत, समझ में आ रहा है। उसके सूत्र के रूप में उपदेशामृत दिया है। तो अभी जो उपदेशामृत का जो सूत्र है 11 श्लोक है, उसमें से 8 नंबर श्लोक जो है ये सारे उपदेश की सार है। तो 8 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में हम लोग लास्ट वीक में हम लोग 40% चर्चा किए थे। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग चर्चा किए थे। हम लोग याद होगा पिछले वीक का, याद है। तो हम लोग श्लोक थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं, श्लोक उच्चारण करते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृते क्रमेण रसना मनसी निजज्जो। सुन के बोल सकते। स्मृते क्रमेण रसना मनसी निजज्जो तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। कालं नयेत् अखिलात् इति उपदेशसारम्। कालं नयेत् अखिलम् इति उपदेशसारम्। कोई इंग्लिश में पढ़िए इसका अनुवाद, या हिंदी में पढ़िए। हाँ पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, जोर से पढ़ो। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसके पैर गोकुल वृंदावन में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। श्री भगवान के प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से पूरक है। मैं बांग्ला में पढ़ता हूँ। समग्र उपदेश समूहेर सारांश हलो এই যে প্রত্যেকের শ্রী ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা আদি উত্তম রূপে নিরন্তর কীর্তন ও স্মরণ করে সময়ের সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই উপায়ে মন ও জিহ্বা ক্রমে ক্রমে ভগবত সেবায় নিয়োজিত হবে। এইভাবে ব্রজধামে গোলক বৃন্দাবন ধাম বাসপূর্বক কৃষ্ণ ভক্তের আনুগত্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত এবং ভগবানের নিত্য সেবায় মগ্ন তার প্রিয় ভক্তদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা উচিত। तो इस श्लोक में
हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं। इस श्लोक में आप लोग लिख रहे हैं ना, अटेंडेंस नाम लिख रहे हैं। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी पाद मुख्यतः 3 चीज कहा है। तो मुख्यतः 3 चीज कहा है कि इस प्रकार मन और जीवा को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। पहला चीज है कि इस प्रकार मन और जीवा को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। उस संदर्भ में ये भी बताया गया है कि इस प्रकार मन और जीवा जो है ये योग अनुशीलन करने के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और इसलिए क्यों मन को नियंत्रण करना जरूरी है, मन को या जीवा को नियुक्त करना जरूरी है, और कैसे मन और जीवा को नियुक्त किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। पिछले वीक में जो हम लोग चर्चा की थी उसके इस पॉइंट के ऊपर हम लोग डिटेल्स चर्चा किए थे। तो श्रील प्रभुपाद उससे शुरू किए हैं तात्पर्य। आपने किसने तात्पर्य पढ़ा है? लास्ट वीक मैंने होमवर्क दिया था, उपदेशामृत का 8 नंबर श्लोक किसी ने नहीं पढ़ा है। तो आप सभी से निवेदन है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ऑनलाइन ऑफलाइन डिवोटीज का, सभी लोगों का, सेल्फ मैनेजर बैच सभी लोगों का होमवर्क है। उपदेशामृत का 8 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक, 8 नंबर श्लोक, इसका तात्पर्य के साथ पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवत गीता में कहते हैं कि अगर आपके मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपके मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर आपके मन आपके नियंत्रण में है तो आपके मन आपके सबसे श्रेष्ठ मित्र है। और फिर उपदेशा भागवत गीता में भगवान फिर और कहते हैं 6 चैप्टर में मन के ऊपर है, 6 चैप्टर भगवान मन के ऊपर ध्यान योग है। 6 चैप्टर कैसे मन को भगवान में लगा सकते हैं उसके बारे में भगवान कहते हैं, मौन एवं मनुष्यानाम कारुणं बंधनम मोक्षय। मौन ही एक व्यक्ति का बंधन का कारण है, मन ही एक व्यक्ति का मुक्ति का कारण है। तो इसलिए मन अगर भगवान के सेवा में लगा नहीं रहेगा तो बाकी इंद्रियां जो जिसके स्वामी है मन है बाकी इंद्रियों के स्वामी, तो फिर इंद्रियों को तो भगवान के सेवा में लगने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए सभी इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली इंद्रिय है जीवा। तार मध्य जीवा होती लोभमय सुदूरमती, तारपर ताके जेता कठिन संसारे। कृष्ण बर दयामय करिबारे जीवा जाए, स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्नामृत पाओ। अगला हम लोग भूल जाते हैं, से अन्नामृत पाओ को बहुत याद रखते हैं। राधा कृष्ण गुणों गाओ भूल जाते हैं। तो जीवा को 2 प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है, भगवान की प्रसाद और राधा कृष्ण गुणों गाओ। तो वही चीज इधर बताया गया है पहला पॉइंट में, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। तो भगवान के जो नाम रूप चरित्र क्या करना चाहिए? सुकीर्तनानु, सुंदर रूप से कीर्तन करना चाहिए।
भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला, भगवान के गुण, चरित्र, और इस प्रकार स्मृत्ते अनुस्मृत्ते, सुकीर्तना नु अनु और आगे स्मृत्ते, अनुस्मृत्ते। अनुस्मृत्ते मतलब ऑल द टाइम, अनु मतलब ऑलवेज, अनुक्षण, बांग्ला में एक भाषा है, शब्द है अनुक्षण। तो हमेशा स्मृत्ते, स्मरण करना चाहिए, हमेशा भगवान का याद करना चाहिए। जैसे पिछले वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मन कभी खाली नहीं बैठता है, जैसे कोई भी स्थान खाली नहीं रहता, हवा भर देता है, उसी प्रकार मन में भी अलग अलग प्रकार के विचार, क्या कहते हैं, इवन आप सो जाओगे लेकिन मन जगा रहता है, सोए रहने के बाद भी अलग अलग प्रकार के जो चिंता है वो सपने में आता रहता है, मन एक्टिव रहता है, शरीर सो जाता है। तो इसलिए मन के पास कैपेसिटी है चिंता करने का, है ना। तो अभी प्रश्न है हम लोग किस चीज का चिंता कर रहे हैं, कृष्ण की चिंता कर रहे हैं ना विषय की चिंता कर रहे हैं, इंद्रिय भोग की चिंता कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर इधर गा रहे हैं, संसार जो बने जर सुख संगे अभ्यास होइल मंद, निज कर्म दोषे देह होइल भजनेर प्रतिबंध। संसार यौवने, जब युवावस्था है तब इंद्रिया बहुत बहुत प्रबल होता है, और संसार जीवन में बहुत सारे प्रकार के इंद्रिय भोग का सुविधा रहता है। तो आत्मा भगवान का आश्रय छोड़कर इस भौतिक जगत में, संसार और यौवन में जड़ सुख संगे, भौतिक सुख भोग के प्रति आसक्त होकर उनके उसमें पूरी तरीके से वो डूब जाता है, और इस प्रकार उनके मन और इंद्रिय जो है, उनके शरीर जो है, भजनेर प्रतिबंध, आध्यात्मिक प्रगति के प्रतिबंध, प्रतिकूल हो जाता है। तो इसलिए उपदेशामृत के इस श्लोक में कहा जा रहा है किस प्रकार आप अपने मन और इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त करने के द्वारा, भगवान के सेवा में नियुक्त करने के द्वारा धीरे धीरे स्मृत्ते क्रमेण, क्रमेण मतलब धीरे धीरे, रसना मनसी निजज्जो, अपने रसना मतलब जीवा और मनसी मतलब मन, नियोज्य नियुक्त कर सकते हैं। बहुत जन्मों से हम लोग इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, इस भौतिक संसार में जड़ सुख भोग के पीछे भटक भाग रहे हैं। अभी मनुष्य जीवन में हमें ये भाग्य मिला है, जानकारी मिला है, साधु संघ के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो इसलिए उपदेशामृत के इस सार श्लोक में रूप गोस्वामी पद बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें हमारे मन और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने के द्वारा, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण कीर्तन करने के द्वारा, जप करने के द्वारा, श्रवण करने के द्वारा
हमारे मन और इंद्रियों को नियुक्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस प्रकार आप अनुशीलन करेंगे उसी प्रकार आप मृत्यु के समय आपके विचार होगा। जम जम व्यापी स्मरण भावम तजित तंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस प्रकार आप पूरी जीवन सोचेंगे, काम करेंगे, अपनी इंद्रियों को अलग अलग कार्यकलापों में लगाएंगे, उसी प्रकार के विचार मृत्यु के समय होगा और उसी प्रकार आपका गति होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे बार्धक्य এখন पंचरोगे हतो কেমনে ভজিব বলো কাদিয়া কাদিয়া তোমারো চরণে পড়ি আছি সুবি হলো। जब बुढ़ापा आ जाएगा, अलग अलग प्रकार की बीमारी आपको पकड़ लेगा। अभी तो बुढ़ापा नहीं, शुरू में ही पकड़ लेता है, 30-35 साल में ही पकड़ लेता है अलग अलग प्रकार की बीमारी। और फिर फैमिली प्रॉब्लम, ऑफिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, बहुत मुश्किल है। ऐसे आपको पकड़ लेगा चारे ओर से, मन को स्थिर ही नहीं कर पाएंगे, इतना डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इधर, किंतु कबे प्रभु योग्यता और पीबे ए दासे रे दया करी चित्त स्थिर हबे सकल सहिब एकांते भजिब हरि। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे कि कब आप हमें योग्यता प्रदान करेंगे। मेरे तो कोई योग्यता नहीं है कि आपकी भजन कर सकूं, आपका भक्ति कर सकूं। आप कब हमें योग्यता प्रदान करेंगे कि मेरे चित्त, मेरे हृदय स्थिर होगा, मेरी मन स्थिर होगा और मैं आपकी भजन करूंगा। तो इसलिए मन और जीवा को भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथा कीर्तन के द्वारा, श्रवण के द्वारा हमें और भगवान के प्रसाद खाने के द्वारा हमारे मन और इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त करने का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इफ वी वांट टू गो बैक टू गॉडहेड, अगर हम लोग भगवान के धाम में वापस जाना चाहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें दोबारा ट्रेनिंग देना पड़ेगा मन और जीवा को। विशेष करके सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। कान से भगवान की कथा सुनना चाहिए, पैर से भगवान के मंदिर में आना चाहिए, वॉइस में आना चाहिए, सिनेमा हॉल नहीं जाकर, मूवी थिएटर में नहीं जाकर। तो नाक से भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी या फूल का घ्राण लेना चाहिए, सर से भगवान को प्रणाम निवेदन करना चाहिए, हाथ से भगवान के मंदिर मार्जन करना चाहिए। इस प्रकार हर इंद्रियों को भगवान के सेवा में नियुक्त करना चाहिए। भगवान इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेश। ऋषिक मतलब इंद्रिय, ईशो मतलब ईश्वर। ऋषिक भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना चाहिए। बहुत सिंपल। इधर भगवान का दास, नहीं तो माया का दास, हरिदास नहीं तो प्रभु माया दास। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। প্রভু ঋষিকেশের মানেটা একটু আরেকবার বলুন না, ঋষিকেশ শব্দের মানে যেটা বললেন। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু ঋষিকেশ শব্দের মানেটা একবার বলুন না। हाँ
ঋষিকেশ শব্দের মানেটা একটু বলুন না একবার। ঋষিকেশ ঋষিক মানে হচ্ছে ইন্দ্রিয়, ঈশ্ব মানে হচ্ছে ঈশ্বর। ঋষিকেশ যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর তাকে বলে ঋষিকেশ। তো ভগবান সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর আর সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাকেই ভক্তি বলে। को ऐसे करना चाहिए कि जो आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल हो। ऐसे आहार करना चाहिए जो शरीर स्वस्थ रहे और आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल हो। ऐसे संग घर में रहना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के तुम इधर बैठे उधर तो पीछे से जा सकते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल हो। समझ में आ रहा है? तो अभी दूसरा जो पॉइंट रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि पहला है हमारे मन और जीवा को भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला का सुंदर रूप से कीर्तन करने के द्वारा उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। और धीरे धीरे हम लोग उसका रस, कृष्ण भक्ति का रस को आस्वादन कर पाएंगे। और जब हमें ऊंचा रस का आस्वादन होगा तब नीचा रस जो है छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऊंचा रस का आस्वादन होगा, नीचा रस छूट जाएगा। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अभी दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि कहां पर प्रैक्टिस करना चाहिए, कहां पर प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए इस सॉन्ग में भी भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, गुरुदेव बड़ो कृपा करी गौरव माझे गोद्रुमे दिया स्थान आज्ञा दिला मोरे ब्रजे बसी हरि नाम करो गान। तो दो चीज आज्ञा दिया है गुरु, क्या क्या? हरि नाम का गान करो, लेकिन कहां पर? ब्रज में या नवद्वीप में, गौरवन या वृंदावन। तो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृते क्रमेण रसना मनसी निजज्जो। तो पहला इंस्ट्रक्शन है मन और इंद्रियों को भगवान के नाम रूप गुण में नियुक्त करो। दूसरा क्या है? तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन है ब्रज में वास करो, वृंदावन में वास करो। और उधर वृंदावन में वास करके क्या करना चाहिए? तद अनुरागी जनानुगामी। जो भगवान के अनुरागी भक्त हैं, भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्तों की लेना चाहिए। ऐसे भक्तों की आश्रय लेकर हमें भगवत भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है?
जीवा और मन को भगवान के नाम गुणगान में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि मन और जीवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आध्यात्मिक अनुशीलन, योग अनुशीलन में। अगर वो नियुक्त नहीं हुआ तो क्या होगा, वो आपका बंधन का कारण है। तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, कहां पर हमें भजन करना चाहिए, कहां पर भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। तो उसके बारे में रूप गोस्वामी पाद बोल रहे ब्रज में, तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, वृंदावन धाम में या नवद्वीप धाम में। और तीसरा पॉइंट क्या है, कैसे भजन करना चाहिए। ये तीन चीज उपदेशामृत के सार है। तो कैसे भजन करना चाहिए, तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, जो भगवान के अनुरागी भक्त हैं, भगवान के अनुरागी भक्तों की अनुगामी, उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। जो भगवान के महान पार्षदगण हैं, उनके अनुगामन करना पड़ेगा। तो इसके तात्पर्य के प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं, भगवान की भक्ति करने की 5 प्रकार की रस है। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो एक भक्त जो है शांत रस में भगवान के भगवान के जो शांत रस की भक्त हैं, जैसे गाय, बछड़ा या पेड़ या भगवान के माला, ये लोग सब भक्त हैं। तो या गिरि गोवर्धन पर्वत, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। तो ये कोई पशु या पेड़ नहीं है, ये बहुत महान भक्त है जिन्होंने भगवान को इस प्रकार प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति किया है या तपस्या किया है। और उसकी तपस्या या भक्ति के द्वारा भगवान को भगवान के धाम में, भगवान के गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, पेड़ के रूप में, नदी के रूप में, या पहाड़ के रूप में, जिधर भगवान लीला विलास कर रहे हैं, ये शांत रस के भक्त हैं। साख्य रस में साख्य दास्य रस में चित्रक, पत्रक, रक्तक, ऐसे भक्त हैं जो दास के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनकी पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। फिर साख्य रस में बलराम, श्रीदाम, सुदाम, ऐसे भगवान के भक्त जो हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान के भजन करना चाहिए। और फिर वात्सल्य रस में नंद महाराज, यशोदा मैया या उनके जैसे और भी जो गोपियां हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए भगवान की भजन करना चाहिए। और फिर माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी या ललिता सखी या उनके और भी जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमें भगवत भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। तो ये जितने भी कृष्ण लीला के भगवान के पार्षदगण हैं, ये सभी चैतन्य लीला में प्रकट हुए हैं। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और कृष्ण के पार्षदगण सभी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे रूप गोस्वामी, इधर किताब में फोटो है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, जो ललिता सखी के असिस्टेंट है। ललिता सखी जो है,
ये राधा रानी की असिस्टेंट है। राधा रानी की 8 मुख्य सखियां हैं और 8 मुख्य सखी में ललिता सखी हेड है। ललिता सखी के अंडर में और भी बहुत सारे मंजरियां रहती है। मंजरियां मतलब छोटी छोटी सखियां। इस मंजरियों में रूप मंजरी सबसे प्रधान है और रूप मंजरी चैतन्य महाप्रभु के लीला में रूप गोस्वामी पाद के रूप में आए। पहले उनका नाम था संतोष, जो वो हुसैन शाह मुस्लिम राजा उसके मंत्री थे। सनातन गोस्वामी का नाम था संतोष एंड तो बाद में नाम पड़ा साकवर मौली कबीर खास। तो चैतन्य महाप्रभु उनको इनिशिएट किया, दीक्षा दिए चैतन्य महाप्रभु, और रूप गोस्वामी पाद को नाम दिया। रूप गोस्वामी पाद का नाम दिया जो संतोष से रूप गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी का नाम हुआ सनातन। तो अमर 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 और संतोष, अमर सनातन गोस्वामी का नाम था, वल्लभ और एक भाई। तो ये सभी जो कृष्ण लीला के भगवान के जो सखा सखीगण हैं चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट हुए हैं और वो सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण भक्ति करना चाहिए। इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के द्वारा वो सिखा रहे हैं। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके सिखा रहे हैं, बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए और उनके पार्षदगण आए हैं सिखाने के लिए कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम, कैसे वृंदावन में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो वृंदावन की प्रवेश करने की जो दरवाजा है वो चैतन्य महाप्रभु ने खोला है और चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के लिए वृंदावन धाम, जो सबसे श्रेष्ठ धाम, इधर सबसे क्या कहते हैं, सबसे अंतरंग भाव से, सबसे इंटीमेटली भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति किए हैं जो ब्रज के भक्त लोग, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए सभी महान पुरुषगण, ब्रह्मा, शिव, नारद, चतुष्कुमार, लक्ष्मी देवी भी प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं बांटने के लिए। तो और उस प्रेम प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा दिए हैं कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। वो प्रेम या भक्ति क्या है उसको तात्विक रूप से, दर्शन के रूप से वो वर्णन कर रहे हैं, सूत्र के रूप में दिया है। गिराइएगा मत, ठीक है, थोड़ा जगह दे दीजिए। तो इस प्रकार उनके आश्रय या उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने के बिना हम लोग भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। गिरा क्या? एक्चुअली रुमाल डालना चाहिए उसके ऊपर। इतना बार बोलने के बाद भी रुमाल आप लोग कहाँ खो देते हैं। तो समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम लोग थोड़ा सा, हमारे पास जितना समय बचा हुआ है, तो हम लोग जो 2 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। 2 नंबर पॉइंट क्या है? कहाँ निवास करना चाहिए।
तो वृंदावन जो धाम है, वृंदावन धाम जो है, थोड़ा ऊपर चले जाइए आप, स्लाइड ऐसे निकल जाता है। 84 क्रोश है, और इस 84 क्रोश में 12 मुख्य वन है और 12 उपवन है। उपवन समझते हैं ना, मेन फॉरेस्ट एंड सब फॉरेस्ट। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपने दिव्य लीला विलास किए हैं। तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, कृष्णं स्मरणं जना चास्य पृष्ठ निजो समिहितम तत्तत् कथा रतोश्चाश्चौ ऊर्जात् वासम ब्रजे सदा। ऊर्जात् वासम ब्रजे सदा, सदा ब्रज में वास करना चाहिए। और ब्रजे वास पूर्वक क्या करना चाहिए? बिजनेस। ब्रजे वास पूर्वक क्या करना चाहिए? तत्तत् कथा रतो चाश्चौ, कृष्ण स्मरणम जनम चास्य, कृष्ण की स्मरण करना चाहिए या कृष्ण कथा में रत होना चाहिए। समझ में आ रहा है? चास्यं प्रेष्ठ निज समिहितम, प्रेष्ठ मतलब प्रिय, निज कृष्ण का प्रिय भक्तों का आश्रय लेकर सदा कुर्यात वासम ब्रजे सदा, सर्वदा ब्रज में वास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृष्ण स्मरण करना चाहिए और कृष्ण कथा में निमग्न होना चाहिए। तो इससे समझ सकते कि ब्रज में जाने का उद्देश्य क्या है। ब्रज में जाने के उद्देश्य क्या है? हमेशा कृष्ण की स्मरण करो और हमेशा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में डूबे रहो। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग समझने की प्रयास करिएगा। साउंड थोड़ा कम लग रहा है। एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि जो ब्रज है, पहला पॉइंट है ब्रज जो है ये कृष्ण कथा और कृष्ण स्मरण के लिए सहायक है। पहला पॉइंट है हमें ऐसे जगह में वास करना चाहिए, ऐसे जगह में वास करना चाहिए जो स्थान कृष्ण कथा और कृष्ण भक्ति के, कृष्ण स्मरण के सहायक है। अगर हम ऐसे स्थान में रहते हैं जिधर सभी लोग कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, नॉन वेज खा रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, गाली देते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, क्या हम उस स्थान में सीरियसली कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? क्या आप उस स्थान पर रह के कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, प्राप्त कर सकते हैं? ये सुनो, विशेष करके हम जैसे साधक भक्तों के लिए जो अभी तक शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए तो ऐसे अनुकूल परिवेश चाहिए जिधर वो भगवान को प्राप्त कर सके, है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी पद आगे चल के बोल रहे हैं, सेवा साधक रूपेण, सब लोग बोलिए, सिद्ध रूपेण चात्र ही
तद्भावो लिप्सुना कार्या रोजो लोकानुसारता। तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही। इधर और एक स्टेप आगे बोल रहे हैं, सब लोग सुनिएगा अच्छे से। साधक भक्त हो या सिद्ध भक्त हो, दोनों को करना चाहिए। साधक भक्त हो, अगर सिद्ध भक्त को करना चाहिए तो साधक भक्त को क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसे स्थान में वास करना चाहिए जो हमारे आध्यात्मिक कृष्ण स्मरण या कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति के सहायक या अनुकूल हो। तभी हम लोग भक्ति के संपूर्ण विकास, भक्ति के संपूर्ण रस का आस्वादन कर पाएंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। तिष्ठन ब्रजे, ब्रज धाम में रहना चाहिए। और उधर रह के क्या करना चाहिए? कृष्ण स्मरणम जनम चास्य, कृष्ण स्मरण करना चाहिए। तत्त कथा रतश्चास्यो, और उधर कृष्ण कथा में रत होना चाहिए। कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण। और कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण कहाँ होता है? कृष्ण स्मरण, कृष्ण कथा कहां पर होता है? वृंदावन जाने के उद्देश्य क्या है? वृंदावन वास करके क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा करना चाहिए और कृष्ण स्मरण करना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किया था। सेकंड पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। 3 पॉइंट का सेकंड पॉइंट। तो उधर रूप गोस्वामी पाद सेकंड पॉइंट में बोल रहे ब्रज में वास करना चाहिए। अभी सेकंड पॉइंट में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि ब्रज में क्यों वास करना चाहिए? क्योंकि ये कृष्ण स्मरण और कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा के सहायक है। ठीक है। अभी दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट है कि ब्रज में वास करने के उद्देश्य है कृष्ण स्मरण करना और कृष्ण कथा में रत होना, है ना? तो फिर अगर आप जिस स्थान में कृष्ण कथा और कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्थान में कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, वो स्थान वृंदावन है। जिस स्थान पर रह के, अगर आप किसी भी स्थान पे रहकर अगर आप कृष्ण कथा और कृष्ण स्मरण कर रहे हैं, तो वो वृंदावन है या नवद्वीप है। अभी वो कहां पर होता है? ये जहां भक्तों की संगति है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया, तीर्थ कहां पर है? व्हाट इज तीर्थ? क्या बोला उन्होंने? जहां हरि कथा होता है वहां तीर्थ है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वृंदावन को जियोग्राफिकली आपको केवल उसको बाउंड नहीं कर सकते। वृंदावन धाम को केवल भौगोलिक रूप से आप उसको सीमित नहीं रख सकते हैं। वृंदावन इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। वृंदावन हमेशा वर्धित होता रहता है। कृष्ण जो है अनंत है, और अनंत होने के बाद भी वो अनंत काल से वर्धित होता रहते हैं। ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। कृष्णा हमेशा वृद्धि होता है। कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण की लीला हमेशा बढ़ता रहता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण की जो लीला है इतना तक है, ठीक है, ये 1,500,000 उसकी आपने 1,500,000 जान लिया है, बस आपने कृष्ण को जान लिया। कृष्ण की लीला अनंत है और अनंत काल से कृष्ण की लीला चलता रह रहा है, नया नया लीला।
और कृष्ण के गुण भी अनंत हैं। जितना आप समझेंगे उतना कृष्ण के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगा, और जितना भक्ति बढ़ेगा कृष्ण उतना आपके हृदय में आपके हृदय में उनके और मधुर गुणावली और प्रकाश करेंगे। और जितना आपके अंदर प्रकाश करेंगे भगवान, उतना आपकी भक्ति और बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा कृष्ण और प्रकाश करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार भक्तों के साथ भगवान का आदान प्रदान, कंटिन्यूअस रेसिप्रोकेशन होता रहता है। और इस प्रकार भक्त कभी भक्ति जीवन में कभी बोरिंग नहीं फील करता है, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप गुण लीला वर्धित होता रहता है, और भक्तों की आनंद का जो रस है और वो आस्वादन करते रहते। समझ में आ रहा है? तो मैं जो कहना चाहता था कि भक्त को कहां पर रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन को सफल बनाना है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना है, तो हमें ऐसे वातावरण में रहना चाहिए, ऐसे स्थान में रहना चाहिए जो कृष्ण स्मरण और कृष्ण कथा, कृष्ण नाम जप के अनुकूल हो। तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के भक्तों के लिए ज्यादा उन्होंने वृंदावन जाने के लिए एनकरेज नहीं किया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते कि वृंदावन का इनर मीनिंग क्या है, वृंदावन धाम का असली अर्थ क्या है, या वृंदावन जाके हमें क्या करना चाहिए, वृंदावन में किस प्रकार वास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि आज के सिचुएशन में लोग बहुत ही गिरे हुए हैं, और उनको बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति में अगर आप वृंदावन भेजोगे तो जाके क्या करेगा? अपराध करेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह है कि वृंदावन में ऐसे बहुत सारे सहजिया लोग घूम रहा है, वृंदावन में ऐसे तथाकथित साधु घूम रहे हैं, और वृंदावन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो अगर आपने सही तरीके से तत्व को नहीं समझा, आपने सही तरीके से भक्ति के सिद्धांत को नहीं समझा, आपका सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं हुआ, तब क्या होगा? वृंदावन जाके वो सारे लोगों की संगति में आप भक्ति के मूल मार्ग से भटक जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के भक्तों के लिए उन्होंने इस वृंदावन धाम का विस्तार किया, वृंदावन धाम को पूरे विश्व में लेके गए। समझ में आ रहा है? तो स्वयं वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गौर चंद्र के रूप में आए, और वो खुद आचरण करके सिखा रहे हैं कैसे हमें भक्तों के साथ में रहकर, गोष्ठानंदी भक्तों के साथ में रह के हमें हरि कथा, हरि नाम का उसमें डूबे रहना चाहिए, कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण कथा बोलना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, कृष्ण के विग्रह के सामने नृत्य करना चाहिए, और
बीच बीच में हमें भगवान के धाम में विजिट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अभी जस्ट मैं खत्म करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण कमेंट किया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कहा हाँ, सब लोग सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इनिशियल स्टेज, शुरू में भक्तों को क्या करना चाहिए? One who has not yet developed interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train one mind by following the progressive regulative principles. Namely, chanting and remembering Krishna, Lord Krishna and his name, form, quality, pastime and so forth. तो शुरू में क्या करना चाहिए? जैसे अभी रूप गोस्वामी पद लिखा है, तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कि ब्रज में वास करना चाहिए। तो कोई सोच सकता नहीं तुरंत ब्रज में चले जाना चाहिए, या कोई सोच सकता है फिर ब्रज में कहाँ गया, कहाँ है, इसका मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, हम लोग तो स्टूडेंट हैं, कैसे करेंगे? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं कि ब्रज में वास करने की मूल उद्देश्य क्या है, वो पहले समझना चाहिए। अगर आप वो करने के लिए ट्रेंड अप नहीं होते और ब्रज में चले जाते हैं तो फिर हमें लाभ होगा? लाभ होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ब्रज में वास करने के मुख्य उद्देश्य क्या है ना? हमें कृष्ण भक्ति करने के लिए हमारे जो उत्साह है उसको जागरूक करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और हमें भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इसमें अपने मन और इंद्रियों को, अपने मन और जीवा को नियुक्त करने की क्या कहते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब हम लोग अभ्यास करेंगे, ये मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो तब क्या होगा, धीरे धीरे हमें कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति में आसक्ति या रुचि जागरूक होगा। समझ में आ रहा है? रुचि जागरूक होगा। और फिर एडवांस स्टेज में, in above mentioned way, after developing the taste for such thing, one should try to live in Vrindavan and pass one's time by constantly remembering Lord's name, fame, pastime and quality.
under the direction and the protection of the expert devotee. This is the sum and substance of the instruction regarding the cultivation of devotional service. फिर प्रगतिशील अवस्था में, उन्नत अवस्था में कोई व्यक्ति वृंदावन में जा सकता है और उधर संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन में संपूर्ण रूप से निमग्न हो सकता है, एक शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में। समझ में आ रहा है? एक शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में। तो इसके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आध्यात्मिक प्रगति का अलग अलग स्तर वर्णन किया है। तो किस प्रकार कृष्ण कथा, कृष्ण स्मरण करने के द्वारा कोई व्यक्ति अपने परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है, अपने शाश्वत स्वरूप, जो सभी जीवों का शाश्वत स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। हम सभी लोग भगवान के धाम में थे, भगवान की सेवा में, लेकिन जब हम लोग भगवान से अलग होकर जीवन जीने के लिए सोचा, तब हमें भौतिक जगत आना पड़ा। तो लेकिन इस कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम लोग हमारे जो शाश्वत स्वरूप को पुनर्जागृत कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि, अपने स्वरूप को दोबारा प्राप्त करना या समाधि। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध को पुनर्जागृत करे या हमारे असली स्वरूप को वापस प्राप्त करे। अभी हमारे जो स्थिति है ये परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तनशील है, ये हमारा असली स्थिति नहीं है और ये स्थिति बहुत दुखदायी है। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने स्थिति को बना के रखने के लिए, लेकिन हमेशा स्थिति, भौतिक जगत की स्थिति बदलता रह रहा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भव महादावाग्नि। लेकिन कृष्ण की शरण लेने के द्वारा हमारे शाश्वत स्वरूप को पुनर्जागृत कर सकते हैं। और इस भौतिक जगत में जो हम लोग जो संघर्ष में लगे हुए हैं, फैमिली स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस या एकेडमिक स्टेटस, अलग अलग चीज जो है लोग या पोस्ट पोजीशन बना के रखने के लिए लोग कई संघर्ष कर रहे हैं, काट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। ये क्या आनंददायी है? बहुत ही पेनफुल है। और ये जो संघर्ष चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे को मारने के प्रयास कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ, एक भाई दूसरे भाई के साथ, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ, हर जीव लड़ाई कर रहे हैं, कौन आगे जाएगा। तो ये भौतिक जगत है और ये भौतिक जीवन है। जब हम लोग शरीर के स्तर पे सुखी होने के लिए प्रयास करेंगे तब क्या होगा, ऐसे भौतिक संघर्ष में फंसे रहेंगे। लेकिन जब हमें पता चलेगा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवात्मा कृष्ण के नित्य दास हैं, तो हम लोग इस भौतिक शरीर में बद्ध अवस्था में हैं। तो जीवन के मुख्य उद्देश्य है भगवान के साथ खोया हुआ संबंध को जोड़ना। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है और इसलिए असल में आत्मा का कुछ खोने का कुछ नहीं है, ना आत्मा का कुछ प्राप्त करने का है। आत्मा भगवान के नित्य दास है, इसलिए आत्मा के साथ भगवान की शाश्वत संबंध है। अभी वो छुप गया है, अभी वो ढक गया है, उस
उसको जागरित करना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुनाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करहो उदय। उसको जागृत करना चाहिए, सबके पास है। और आध्यात्मिक जगत में सफिशिएंट हॉट सीट है, इसलिए अगर आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे सीट का कमी नहीं रहेगा। इस भौतिक जगत में क्या हो रहा है, म्यूजिकल चेयर के जैसे लड़ाई हो रहा है, आई हट तो मैं आगे जाना चाहता हूं, ओम पूर्वम, क्योंकि भौतिक जगत में क्राइसिस है, आध्यात्मिक जगत में कोई, इसलिए कोई कंपटीशन नहीं है, फॉल्स कंपटीशन नहीं है। उधर कंपटीशन क्या है, कौन ज्यादा कृष्ण की सेवा कर सकता है। कितना अच्छा कंपटीशन है, कौन पहले कृष्ण के पास पहुंच सकता है। और एक दूसरे को लोग प्रेरणा देते हैं, सहायता करते हैं। तो इस प्रकार जब हम लोग भगवान की शरण लेते हैं, तब इस भौतिक कंपटीशन जो है, अनहेल्दी कंपटीशन, ऑलवेज एंजाइटी, वो खत्म हो जाता है। तो अगले हफ्ते में हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार इस कृष्ण कथा श्रवण करने के द्वारा श्रवण के 5 लेवल है, स्मरण की 5 स्तर है। श्रवण कीर्तन के द्वारा कोई व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनिशियल स्टेज में हमें वैदिक भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। और वैदिक भक्ति मतलब जैसे हम लोगों का 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, डेली हरि कथा सुनना, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना, इस प्रकार हमारे मन और जीवा को कृष्ण की सेवा में 4 नियमों को पालन करना, नियुक्त करना चाहिए। और इस प्रकार करते करते जब आप एडवांस स्टेज में जाएंगे, भगवान की कथा, भगवान के नाम में रुचि, तब आप वृंदावन में जाने के योग्य बन सकते हैं। और इस प्रकार एडवांस स्टेज में अगर आप वृंदावन जाकर किसी प्रगतिशील भक्तों के आश्रय में रहकर भजन करेंगे तो कोई असुविधा नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर आप ऐसे स्थान में रहते हैं जहां वृंदावन के जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कहते हैं इसको, वृंदावन के जो गुण है, वृंदावन के कार्यकलाप का पालन होता है, तो फिर वो स्थान वृंदावन है। तो इसलिए शारीरिक रूप से वृंदावन में रहिए, या शारीरिक रूप से वृंदावन के बाहर ऐसे किसी स्थान में रहते हैं जो वृंदावन की समान है। समझ में आ रहा है? और उस स्थान में रहकर एक प्रामाणिक भक्त जो है, जैसे श्रील प्रभुपाद, पूर्वातन आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायीगण जो ब्रजवासी हैं, महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके आश्रय में रह के अगर आप भगवत भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो आपके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गृहस्थों के लिए आपके घर को वृंदावन बनाइए। और जो यूथ है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो वॉइस में रहना चाहिए। नॉट वॉइस इज ए वृंदावन, वेयर कृष्ण इज द राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मानी श्रील प्रभुपाद भक्तों के संग है, जो इस प्रकार बनाया गया है, जिधर हमारे जो भौतिक जो दायित्व है उसको पालन करते हुए हम लोग जीवन के जो परम लक्ष्य है, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, कृष्ण स्मरण हम लोग कर सकते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का क्रिएशन है, श्रील प्रभुपाद जी का क्रिएशन फॉर द स्टूडेंट। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में मंदिर बनाया है। अभी सब लोग मंदिर में नहीं रह सकते, तो जो गृहस्थ लोग हैं घर को वृंदावन बना सकते हैं और बीच बीच में मंदिर आ सकते हैं। और जो स्टूडेंट है आध्यात्मिक जीवन के स्लॉटर हाउस में नहीं रहकर आध्यात्मिक जीवन का जो एम्बेसी है,
या वृंदावन है, जिधर आपके मटेरियल ड्यूटीज को नेग्लेक्ट नहीं कर या अवहेला नहीं करके आप अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज श्रील प्रभुपाद मर्सी। हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था, मैं बहुत बार बोला है, हम लोगों के समय वॉइस की फैसिलिटी नहीं था। और जब मैं भक्ति में आया, बाद में जब वॉइस देखा तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था कि अगर हम लोगों के समय में। तो इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी को कि आप इसका लाभ उठाइए, इसका लाभ उठाइए। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है और भक्ति श्रील रूप गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से सूत्र के रूप में दिया है, सूत्र के रूप में कैसे आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेम के दो स्तर है, एक है प्रेमा भक्ति, दूसरा है साधना भक्ति। साधना भक्ति के दो स्तर है, वैदिक साधना भक्ति, रागानुग साधना। तो रागानुग साधना भक्ति जो प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते, जो ब्रह्मा का भी दुर्लभ है, नारद का भी दुर्लभ है, चतुष कुमार का दुर्लभ है, शिव जी का दुर्लभ है, वो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लालायित है। श्रील प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी पर प्रैक्टिकली सूत्र के रूप में दिया है, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, गृहस्थ हो या सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ज्यादातर भक्त लोग गृहस्थ थे, कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी भी थे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नहीं है या आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते कोलकाता में रह के हुए। तो महाप्रभु के पार्षद लोग करंट एग्जाम्पल, इस्कॉन के भक्त लोग करंट एग्जाम्पल। इस्कॉन में ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृष्ण भक्ति को सीरियसली लीजिए, कृष्ण को अपने जीवन के परम लक्ष्य बनाइए और भक्तों के संग में रहिए। भक्तों के संग में रहकर आपके जो भौतिक दायित्व है उसके साथ साथ सिंसियरली कृष्ण भक्ति का अनुसरण करिए और इस प्रकार आपके मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। उसमें ही आपको दिव्य आनंद और संतोष की प्राप्ति होगी। ये तो भौतिक जगत में लोग सुखी ओनली कृष्ण भक्त ही सुखी है। कृष्ण भक्त, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। तो सेल्फ मैनेजर बैच के लिए एक अनाउंसमेंट है। सेल्फ मैनेजर बैच के डिवोटीज